So dear students, let us continue with the topic of magnetic circuits. In this video I will be dealing with the numerical problems based on magnetic circuits basically. And before that, let us recall what are the quantities that we have already discussed and what is the correspondence of those quantities in magnetic domain with the quantities in the electrical domain. So I will discuss the this line later on. First of all, if we see that the MMF, magnetomotive force, is equivalent to EMF, as we have seen earlier, the voltage, and the flux in the magnetic core was equivalent to the current in the electrical circuit. The reluctance provided by the magnetic circuit to the creation of the flux is equal to the resistance that is equivalent to the resistance that is provided by the electrical circuit to the flow of the current. Okay, and the permeance is the reciprocal of the reluctance. Permeance यहाँ पे एक नया term है. तो permeance is nothing. Reluctance is the opposition. Permeance is the opposite of the permission basically, and it is the reciprocal of the reluctance. It is similar to the conductance. Conductance is the reciprocal of the resistance in the electrical domain. We had permeability. Here we are having conductivity, and conductivity is basically reciprocal of the resistivity. Now we have in electrical domain a law that is known as J is equal to sigma E. J is the current density. It is equal to the conductance or the conductivity into electric field intensity. It is a product of J is equal to sigma E. J is the electrical J is the current density. Current density is equal to conductivity into electrical field intensity, and this is known as the point form of Ohm's law. Basically, Ohm's law that we know of is V is equal to IR, but this will be studied by electrical engineering students in their second year when they will study the electromagnetic field theory, that this is the modified form of Ohm's law. Corresponding to this, we can have a point form of Ohm's type of law for magnetic circuits, that is B is equal to mu into H. This we have already this thing we have already formulated in the previous video. ये formula कैसे आया हमने last video में हमने देखा था. ठीक है. Now coming to this line, the first line, the magnetic flux density is equivalent to current density, क्योंकि magnetic flux density is flux upon per unit area. Flux per unit area, flux के corresponding current है. Current per unit area will be current density. ठीक है. ऐसी magnetic field intensity will be equivalent to electrical field intensity. ठीक है. अब कुछ लोग कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि the B magnetic flux density is equal to electric flux density. That is not correct. क्यों? क्योंकि by definition as I described that B is equal to flux per unit area, flux के corresponding current है, current per unit area will be current density. तो current density और flux density यहाँ का वो equivalent हो गए. ठीक है. Now coming to the before we solve the problems, let us first of all see the rules. ठीक है. और बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कोर को डिस्कस नहीं किया है. दैट मीन्स जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग अपनी लपेटी है और उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, एंड वी आर कन्फाइनिंग इट टू व्हाट वी सेड एज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड दैट येट. ठीक है. हाउ इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, this we'll be discussing in the next video, but before that we must solve the problems based on the formulae or the parameters that we discussed above.
तो उसके लिए सबसे सिंपल रूल्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंसेज इन सीरीज होते हैं वैसे ही रिलेक्टेंसेज भी इन सीरीज एड अप हो सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है that was R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 if they are in series, right? रिलेक्टेंसेस भी सीरीज में सिमिलरली एड अप करे जा सकते हैं। रिलेक्टेंसेस इन पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, इसी तरीके से वी कैन हैव द रिलेक्टेंसेस इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रिलेक्टेंस कैन बी फॉर्मुलेटेड एज दिस। एमएमएफ सीरीज में अगर एमएमएफ होंगे, बाय दिस व्हाट आई मीन दैट एक ही पाथ में अगर दो से ज्यादा हमारे पास सोर्सेज हैं, एमएमएफ सोर्सेज हैं, तो उनको हम एक ऐड अप कर सकते हैं। जैसे दो वोल्टेजेस को हम ऐड करते हैं। अलजेब्राइक सम ऑफ फ्लक्सेस एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। जैसे करंट में होता है कि एक करंट एक नोड है, अगर फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दिस लाइक दिस, दिस इज द नोड, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 निकल रहा है फॉर एग्जांपल। तो आई कैन से दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द KCL, राइट, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। तो इसको हम अगर देखें तो अल्जेब्राइकली दैट मीन्स हमने अभी यहाँ पे करंट की जो हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेंगे तो उसमें माइनस साइन लगाएंगे, तो करंट टोटल एट द नोड, एट दिस नोड द करंट विल बी 0। तो सिमिलरली फॉर द फ्लक्स, इफ आई एम जनरेटिंग द फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, तो जो फ्लक्स होगा वो दो भाग में डिवाइड होगा। तीनों फ्लक्स का जो अल्जेब्राइक सम होगा एट दिस नोड, एट दिस पर्टिकुलर नोड, दैट विल बी इक्वल टू 0। So this is the KCL, Kirchhoff's current law of the magnetic circuits। ठीक है, क्योंकि KCL मशहूर है तो इसीलिए उसको हम KCL से ही समझ रहे हैं। ऐसे ही KVL भी बन सकता है, Kirchhoff's voltage law for the magnetic circuits। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, अगर आप इसको देखें इस सर्किट को, इसमें यहाँ पे सोर्स है, MMF सोर्स है हमारे पास। ठीक है, this is the MMF source over here, or this flux is developing in this and in this path। ठीक है, ये बीच में एयर है, तो इस फेरोमैग्नेटिक पाथ में और इस फेरोमैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स डेवलप हो रहा है। तो हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा, और तीसरा ये वाला हिस्सा। इस पाथ का रिलेक्टेंस S1 है, इस पाथ का रिलेक्टेंस S2 है, और इस पाथ का रिलेक्टेंस S3 है। और इस पाथ से रिलेटेड जो फ्लक्स है दैट इज phi1। इस पाथ, यहां से यहां तक जो पाथ है, इससे जो रिलेटेड फ्लक्स है दैट इज phi2। इस पाथ से जो रिलेटेड फ्लक्स है दैट इज phi3। ओके, सो फार सो गुड। नाउ द थिंग इज कि ये जो पाथ बन रहा है, ओके, फ्लक्स का, ठीक है, इसके अंदर जो टोटल एमएमएफ होगा दैट द सम ऑफ दोज एमएफ विल बी 0। तो एमएमएफ प्लस phi1 S1 प्लस phi2 S2, क्यों phi और S का जो मल्टीप्लीकेशन था, याद करिए आप कि फ्लक्स इनटू रिलेक्टेंस वाज एमएमएफ। तो टोटल जो एमएमएफ है इस लूप के अंदर, ठीक है, दैट विल बी नोन एज, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये सिमिलरली ऐसा ही है जैसे कि इसका वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, इन तीनों का सम 0 होगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ओवर हियर। नाउ हियर देयर इज अ करेक्शन, ठीक है, वो ये कि इस पाथ में जो मैंने ये फ्लक्स वाला पाथ लिया, ये तो अभी आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही था, लेकिन बेसिकली दिस शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, हम इस पाथ को वो पाथ लेंगे जहां पे फ्लक्स डिवाइड हो रहा होगा। अब आप देखें यहां पे कि यहां पे फ्लक्स जनरेट हुआ, यहां पे इधर जब हम आएंगे तो अभी फ्लक्स डिवाइड नहीं हुआ है, फ्लक्स इस पॉइंट पे आके इधर और इधर डिवाइड होगा, राइट। फ्लक्स जो जनरेट हुआ दैट विल डिवाइड एट दिस नोड, इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट।
तो अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो ये है, एक विंडो हमारे पास यहां पे थी लाइक दिस, और एक विंडो यहां पे थी। हमने यहां से फ्लक्स जनरेट किया, राइट? This flux will go up till here, then it will divide into two parts, this one phi1 and phi2। तो नोड हमारा यहां पे बन रहा है और फिर ये फ्लक्स आके यहां पे इस नोड पर ज्वाइन करता है, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना? तो हमारे पास जो तीन हिस्से हुए जहां पे फ्लक्स अगर हम देखें, एक तो हिस्सा यहां से यहां तक का हो गया, ठीक है, जिसमें एक ही टाइप का फ्लक्स है, ठीक है, जिसमें एक ही टाइप का फ्लक्स है, वो एक पार्ट तो ये वाला हिस्सा है। लेट मी कलर दिस एज लाइक दिस। एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा द सेकंड, दिस, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। वो तो मैंने ऐसे रफली बनाया था, लेकिन ये मेजर ये वाला हिस्सा है दूसरा, जिसके अंदर ये वाला फ्लक्स जा रहा है, राइट? एंड थर्ड रीजन विल बी दिस वन, ठीक है, जिसके अंदर दूसरा फ्लक्स हमारा जा रहा है। तो फ्लक्स का एक हिस्सा इस हिस्से में है, इसी का एक हिस्सा इस पार्ट में जा रहा है, दूसरा हिस्सा इस पार्ट में जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली ये जो हमने ये वाला पाथ लिया है ये थोड़ा गलत है, ये वाला सही पाथ है। ओके, नाउ कमिंग टू दी प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। Let us solve a problem. Okay, let me read the problem to you first. A magnetic core in the form of a closed ring has a mean length of 20 centimeter and a cross section of 1 centimeter square. The relative permeability of the iron is 2400. What direct current will be needed in a coil of 2000 turns uniformly wound round the ring to create a flux of 0.2 milliweber in the iron? कह रहा है कि हमारे पास एक रिंग है लाइक दिस वन, ठीक है, और उसकी जो मीन लेंथ है, ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं, दिस इज द मीन लेंथ। ये मीन लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी इस आयरन कोर की जो परमिएबिलिटी है दैट इज 2400। व्हाट डज इट मीन फिजिकली? इट मींस दैट द मैग्नेटिक फील्ड जो ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा 2400 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको यहां पे फ्लक्स को यहां पे प्रोपोगेट करने में आसानी होगी, 2400 गुना ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अगर मुझे इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर 0.2 मिलीवेबर अगर फ्लक्स जनरेट करना है तो कितने अमाउंट ऑफ करंट मुझे चाहिए होगा? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि मैंने लेंथ को और एरिया को और जो भी जितनी भी पैरामीटर्स हैं उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। So we are having the mean length, we are having the area, we are having the number of turns, we are having the relative permeability, and we know the value of mu naught. Mu naught भी हमें पता होता है 4 pi into 10 raised to power minus 7, and we have the value of flux that is 0.2 milliweber that has to be created in this core, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि हम MMF इज इक्वल टू रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स, ये हमें पता है। अब रिलक्टेंस को इसके पैरामीटर्स के जरिए से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है और मीन लेंथ क्या है। तो 1 अपॉन म्यू आर म्यू नॉट L अपॉन A, जैसे हमने पहले देखा था, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द रिलक्टेंस। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट द रिलक्टेंस है 6.63 इंटू 10 raised to power 5। उसके बाद हम उसको इस फॉर्मूले के जरिए से करंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें n नंबर ऑफ टर्न्स पता है, राइट। तो इस चीज को अगर मैं 2000 से डिवाइड करूंगा यहां पे तो मुझे
करंट मिल जाएगा एंड दैट इज 66.3 मिली एम्पियर्स। नाउ द सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी, और वो कहना क्या चाह रहे हैं हम उसको देखेंगे। उसको मैं पढ़ भी सकता हूं लेकिन मुझे पता है तो मैं उसको रीड अलाउड नहीं कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि इसी कोर में जो हमने अभी ये जो मैग्नेटिक पाथ लिया था उसके अंदर मैं एक एयर गैप दे रहा हूं 1 मिलीमीटर का, काट दिया मैंने यहां से, और 1 मिलीमीटर का मैंने यहां पे एयर गैप दिया। ओके, तो अब इतना ही फ्लक्स अगर मुझे यहां पे मेंटेन रखना है तो मुझे यहां पे कितना करंट फ्लो कराना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली here if we see that the length of the air gap यहां पे, क्योंकि देखो यहां पे मटेरियल चेंज हो गया या द मीडियम हैज चेंज्ड, यहां पे मीडियम आयरन था राइट, और यहां पे एयर आ गई, ठीक है, तो देयर आर टू मटेरियल्स नाउ, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द एयर गैप इज 1 into 10⁻³ meters एंड लेंथ ऑफ द आयरन इज पहले कितना था 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 minus 1 into 10⁻³ meters। 1 mm को मैं 1 into 10⁻³ मीटर लिख सकता हूं राइट। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि 2 mmf बन जाएंगे यहां पे, एक mmf ड्यू टू दिस एंड एक mmf ड्यू टू एयर। तो mmf ऑफ आयरन प्लस mmf ऑफ एयर गैप विल बी इक्वल टू द टोटल mmf, और इसी चीज को मैं इस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सर्किट के टर्म्स में शो कर सकता हूं। mmf इज इक्वल टू mmf 1 और mmf ऑफ आयरन प्लस mmf ऑफ एयर, और इसकी अलग अलग होने की वजह क्या है कि इनका रिलक्टेंस ऑफ आयरन एंड रिलक्टेंस ऑफ एयर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम mmf ऑफ आयरन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी आर हैविंग द मीन लेंथ ऑफ द आयरन which is given by this, we are having the area of cross section as 1 into 10⁻⁴. So by applying this formula I can write the mmf as the reluctance, ये जो कैलकुलेट होके आए, into flux. Similarly अब एयर गैप का अलग से mmf निकाल सकते हैं 1/μ0 LA by A into flux and we will get this formula. तो टोटल mmf जो होगा वो इन दोनों mmfs का सम होगा राइट, तो मैंने वही सम यहां पे किया है। तो दैट सम इनटू द फ्लक्स विल गिव अस द टोटल mmf। अब mmf इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, करंट को जब हम फाइनली निकालेंगे तो 862.19 मिली एम्पियर निकल के आएगा। नाउ रिमेंबर दैट जब हमारे पास एयर गैप नहीं था तो हमारे पास कितना करंट आया था उसी फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए 66.3 मिली एम्पियर्स राइट। तो इस सी वाले पार्ट में मैं बाद में आता हूं, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस में पहले पार्ट डी में कर रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन में पार्ट डी नहीं है। अगर आप देखें तो जब एयर गैप हमने लिया तो उस केस में जो हमारा करंट था 862.19 और जब करंट हमने कैलकुलेट किया था विदाउट एयर गैप दैट वाज 66.3। तो जब हमने एयर गैप दिया तो उस टाइम जो हमें करंट चाहिए दैट इज 13 टाइम्स मोर देन द करंट विदाउट द एयर गैप। तो इससे ये पता चलता है कि एयर गैप बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एयर गैप डिजायरेबल चीज नहीं है। तो जितना मिनिमम हमारे पास एयर गैप होगा उतना ही आसानी हो जाएगी, दैट मीन्स उतना ही हमें कम करंट चाहिए होगा फ्लक्स को डेवलप करने के लिए। ओके, तो एमएमएफ को अगर हम देखें यहां पे, दिस वाज द थर्ड पार्ट, ये सिंपल रेशियो है एमएमएफ का। एयर गैप अगर है तो जो हमारे पास एमएमएफ है प्लस डिवाइडेड बाय द एमएमएफ विदाउट द एयर गैप, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.924। तो ये बस एक क्वेश्चन में एक पार्ट था जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या रेशियो है बेसिकली। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 आई विल बी लीविंग अपॉन यू आफ्टर एक्सप्लेनिंग, कि आप लोग खुद करें इसको। ये एक इंडक्टर है सिंपल,
इंडक्टर, यही सेम स्ट्रक्चर को भी हम इंडक्टर बोल रहे हैं, जहाँ पे वाइंडिंग होती है उसको हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये इंडक्टर जो है स्टैंपिंग्स का बना हुआ है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे एक इंडक्टर वर्ड आया और यहाँ पे एक स्टैंपिंग्स वर्ड आ रहा है। तो बेसिकली आपको अगर ये शेप देखेंगे, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीजें देखी होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स को, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स को खुला हुआ देखा होगा, तो उसके अंदर प्लेट्स होती हैं। दोज प्लेट्स आर स्टैम्प्ड टुगेदर, वो आपस में बहुत क्लैंप की जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमारे पास कई सारी स्टैंपिंग्स होंगी इसी शेप की, लाइक दिस। और 3 डायमेंशन में अगर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब एक स्टैंपिंग ऐसी होगी, फिर दूसरी वाली आएगी, फिर तीसरी वाली आएगी, इस तरीके से। ठीक है, वो क्लैंप करके पूरा एक मैग्नेटिक पाथ बनाया जाता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि द कॉइल इज ऑन द सेंट्रल लिम्ब, ये कॉइल इस सेंट्रल लिम्ब पे माउंटेड है। देयर इज एन एयर गैप ऑफ 1 मिलीमीटर, यहाँ पे जो एयर गैप इस सेंट्रल लिम्ब पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज 1 मिलीमीटर ऑफ लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका है, इस सेंट्रल लिम्ब का है, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो बाकी जो जितनी पार्ट्स हैं, जितने भी लिम्ब्स हैं, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयरन की जो जिसकी स्टैंपिंग्स बनी हुई हैं, दैट द परमिएबिलिटी इज, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 800। अब इसमें कितना करंट फ्लो कराना है ताकि यहां जो फ्लक्स इसके अंदर डेवलप हो, दैट शुड बी 8.8 मिलीवेबर। देखो यहां पे एक स्टेटमेंट है, फाइंड द करंट नीडेड इन द कॉइल ऑफ 500 टर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.8 मिलीवेबर। यहां तक समझ में आ रहा है? इन द एयर गैप। तो क्या फ्लक्स इसमें डेवलप नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन कहने का तरीका है कि क्योंकि फ्लक्स जो नजर आएगा वो एयर गैप में नजर आएगा, मटेरियल में नजर नहीं आएगा। ठीक है, या मेजर नहीं किया जा सकता, एयर गैप में मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि फ्लक्स एयर गैप में कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना बना। सिमिलरली अगर हमारे पास रोटेटिंग मशीन है और रोटेटिंग मशीन में एक पार्ट रोटेटरी होगा, एक स्टेशनरी होगा, तो और उसके बीच में डेफिनेटली एक एयर गैप आना ही आना है। तो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो एयर गैप है, पहली बात तो वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और जब हम कहेंगे कि फ्लक्स प्रोड्यूस कितना हुआ, तो हम कहेंगे उस एयर गैप में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, तो अगर आप देखें यहां से फ्लक्स जनरेट हुआ, दिस फ्लक्स विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ओवर हियर। वन पार्ट विल गो इन दिस डायरेक्शन और अदर पार्ट विल गो इन दिस डायरेक्शन। इस पूरे पाथ ऑफ फ्लक्स में ये फ्लक्स डिवाइड नहीं होगा, इस पूरे पाथ ऑफ फ्लक्स में ये फ्लक्स डिवाइड नहीं होगा, और इस पूरे पाथ में फ्लक्स एक ही रहने वाला है। तो ये 3 पाथ हो गए। अब इस पाथ के अंदर 2 चीजें हैं, एक मटेरियल आ रहा है और एयर गैप आ रहा है। तो इसलिए रिलक्टेंस ऑफ द आयरन एंड रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप, इस पूरे पार्ट का रिलक्टेंस ये वाला है और इस पाथ का रिलक्टेंस ये वाला है। अब रिलक्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो म्यू आर चाहिए था, वो हमारे पास अवेलेबल है यहां पे। दूसरी चीज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ऑल्सो गिवन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज द मीन लेंथ। अब ये मीन लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मीन लेंथ आपको खुद कैलकुलेट करनी है, वो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो मीन लेंथ है इट इज 150 मिलीमीटर। यहां से यहां तक की जो मीन लेंथ है दैट इज अगेन 150 मिलीमीटर। यहां से यहां तक की जो मीन लेंथ है दैट इज 60। तो सारी मीन लेंथ्स दे रखी हैं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको रिलक्टेंस निकालने। जब वंस यू हैव गॉट द रिलक्टेंस, देन फाइंडिंग द एमएमएफ इज इजी, क्योंकि ये रिलक्टेंस पैरेलल में आ गए, ये दोनों रिलक्टेंस पैरेलल में आ गए। तो जो हमने पहले अभी रूल पढ़े, 1/S इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2, इससे S इक्विवेलेंट आ जाएगा। दैट S इक्विवेलेंट ऑफ दिस पैरेलल पाथ will come in series with these 3 reluctances, these 2 reluctances. ठीक है,
तो जब हमारे सारे रिलेक्टेंस का सम इक्विवेलेंट आ गया तो एमएमएफ निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली वन अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने अपने अप्रोच से मतलब बेसिकली डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व किया है। इससे थोड़ा हटके जो अप्रोच है, हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज दैट इज आल्सो सेम, बट दैट डील्स विद द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो वहां से वो लेके चलते हैं। तो दैट मेथड इज गिवन इन अशफाक हुसैन, द बुक ऑफ अशफाक हुसैन, द बेसिक इलेक्ट्रिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वाली जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है। वो उस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। एनी हाउ आई find this matter more this way of solving the problem more convenient. If you find that method more convenient, it is same thing, because the result will come out to be same. ठीक है, आप बुक से देख के समझ सकते हैं, ये यहाँ से देख के समझ सकते हैं, that's same thing. Now there are two concepts over here that are basically of practical nature. पहली चीज ये कि फ्रिंजिंग क्या होता है कि जब हमारे पास एयर गैप होता है तो बेसिकली एट द एजेस, ठीक है, जहां पे भी एजेस हैं, जो फ्लक्स यहां से आ रहा है, ठीक है, जो फ्लक्स यहां से आ रहा है दैट इज इन स्ट्रेट पाथ, और एयर गैप में बेसिकली एट द एजेस ये बल्ज आउट कर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो एक्चुअल लेंथ थी उसकी यहां से यहां तक की एयर गैप की, उससे ज्यादा हमारी एयर गैप की लेंथ हो जाती है, यानी मीन लेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, मीन लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा कि रिलक्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिलक्टेंस वाज इक्वल टू 1/μ0 L/A। तो जब L इंक्रीज कर गया तो हमारा रिलक्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। और फिर अगर हम देखें, जब हमारा रिलक्टेंस इंक्रीज कर गया, उससे फ्लक्स इंटू एस वॉज एमएमएफ, तो एमएफ ज्यादा चाहिए होगा। फिर एमएमएफ ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब जो करंट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे, तो जो द करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट दैट फ्लक्स विल इंक्रीज, विल बी मोर डिजायर्ड, विल बी ऑफ हायर क्वांटिटी नाउ। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द फ्लक्स लाइंस टेंड टू बल्ज आउट across the edges at the air gaps. ठीक है, which leads to what? Which leads to the increase in the demand of current to establish the same amount of flux. ठीक है, this is known as fringing. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि एयर गैप बहुत छोटा होता है और हम अपने जो न्यूमेरिकल्स में इस एयर गैप को, इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम निग्लेक्ट करते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस में कभी आप देखेंगे वो वहां पे लिखा होगा निग्लेक्टिंग द फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो दैट मींस दो फैक्टर्स को निग्लेक्ट करते हैं, दैट इज वन इज द फ्रिंजिंग इफेक्ट, सेकंड इज द लीकेज फैक्टर। लेकिन समटाइम्स वी टेक दैट इनटू अकाउंट इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस टाइप की प्रॉब्लम भी अशफाक हुसैन में प्रेजेंट है, मौजूद है, उसको आप देखें कि उसको कैसे ऐड करते हैं। दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिंपल क्वांटिटी। नाउ देयर इज अ फ्लक्स लीकेज आल्सो। ठीक है, वो फ्लक्स लीकेज क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ मटेरियल ऑफ 2400 रिलेटिव, पार्डन में, यानी जो यहां जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वो फ्लक्स इसमें कन्फाइन रहे, इस कोर के अंदर कन्फाइन रहे और इस एयर में ना जाए, उसका रेशियो क्या है 2400। ठीक है, दिस पाथ विल प्रोवाइड 2400 टाइम्स easier path for the flux than the air to flow inside it. लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कुछ part of the flux will link with the air also, will flow into the air and come back to the material. तो मैं देखो इसको डिफाइन कर रहा हूं, the magnetic flux
the magnetic flux having its path partially in the magnetic circuit and partly in the air is called the leakage flux. This flux is not confined to the magnetic path. ठीक है, तो this basically is the leakage flux. तो दो टाइप के फ्लक्स हो जाएंगे, एक तो वो फ्लक्स जो कि इस कोर्स से के अंदर फ्लो करेगा, एस्टैब्लिश होगा, दैट विल बी नोन एज द यूजफुल फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स जो एयर के अंदर फ्लो एस्टैब्लिश होगा, that will be known as the leakage flux. अब leakage factor को हम total flux that is produced by this coil divided by the useful flux से हम divide करते हैं, that will lead to the leakage factor. So most of the times in numerical problems we exclude these two factors, that is the leakage factor and the fringing effect. लेकिन कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि what are these factors. ठीक है. In the next video, we will discuss about the ferromagnetic materials, BH curves and hysteresis loop, and then we will finish off with this topic of magnetic circuits, and then we will continue with the transformers. Thank you.